Good morning, everyone. Good morning. Okay. Good morning. Good morning. Chalo. I'm fine, Rajdeep. ठीक है. तो मॉड्यूल जब मॉड्यूल में होमवर्क दिया था क्या? आई हैव गिवन एनी होमवर्क? नहीं, कोई बात नहीं. ठीक है. Okay. 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 Good. 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 So what we can do is we can start. Let's say spectrum. मैंने spectrum पढ़ा दिया था, right? Start किया था, right? Okay, Gauranj. We'll see. जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे then you can ask. ठीक है. Yes. तो कोई मुझे बताएगा कि क्या है स्पेक्ट्रम? एनीवन? बोलो. Yes, Rajdeep. White light passes from one transparent medium to another transparent medium such as prism. It splits up into its 7 constituent colors, a band of 7 colors, which is called a spectrum. So it is not passing through the medium, it is passing through, let's say, either prism or you can say some mainly prism, you can say spectroscope, I was used to say. So it is passing through the, let's say, prism, then it is refractive material. Yes, yes, okay, you can say that. Okay. ठीक है. So there were two type of, let's say, spectrum which we have seen. One is emission spectrum and another one is absorption spectrum. Okay. Emission spectrum when the electrons are already in excited state and they are going into lower energy states. So when they are releasing the photons. Okay. And absorption is when electrons are in ground state and you're falling some energy and then they are absorbing that energy and going to excited state. Okay. Absorption, from the name itself, it is going to absorb energy, right? Emission, that is going to release the energy. Okay. Okay. So there could be, in both cases, there could be, let's say, line as well as band spectrum. Line ka matlab kya hai? Individual lines are going to, you are going to see observed individual lines. And band ka matlab kya hai? You are going to see a band of lines. Okay. And then somewhere one or two lines are going to be, let's say, absent. Okay. Okay. So let's move on to today is hydrogen spectrum of emission spectrum we are going to see. Okay. So we will start from here. Acha, and I have already told you how many number of photons are going to be, different type of photons are going to be emit when the electron is making transition from one energy state to another energy state, है ना? ये भी बता दिया है. So let's say in today's class we are going to understand. Today's class is (11). We are going to talk about emission spectrum of hydrogen atom. So emission spectrum of hydrogen atom. Now what is going to happen?
So this emission spectrum, जैसे मैंने आपको बताया था कि we are going to see what are the possibility, ठीक है, राइट, कि n5 से कहाँ तक जा सकता है। वैसे कोई ऐसा भी सोच सकता है कि n इक्वल्स टू 1 में कहाँ से आ सकता है ना। इफ वी आर गोइंग टू फिक्स द लोअर स्टेट, है ना, मैं कहूँ कि n इक्वल्स टू 1 में कहाँ से आ सकता है, देन आई कैन से 2 से 1 में आ सकता है, 3 से 1 में आ सकता है, 4 से 1 में आ सकता है, 5 से 1 में आ सकता है। So if we are going to fix the lower energy state, so there are names given for that. अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 1 में आ रहा है, ठीक है, राइट, अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 1 में आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज, उसको क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। सो देयर आर नेम्स गिवन फॉर दैट। ठीक है, फोटोन कहीं से भी n इक्वल्स टू 1 में आ रहा है तो n2 would be 2, 3, 4, 5 to infinite, and n1 is going to be 1, lower energy state is going to be 1, Lyman series. Then we are going to say Warmer. तो यहाँ पे वार्मर सीरीज के लिए क्या होगा, अगर कहीं से भी n इक्वल्स टू 1 में आ रहा है लाइमन, कहीं से भी n इक्वल्स टू 2 में आ रहा है, देन वी आर गोइंग टू से वार्मर सीरीज। तो n2 could be 3, 4, 5 to infinite, and n1 is going to be 2. So the things we are changing is कि कौन सी स्टेट में आ रहा है ये, है ना, वार्मर। पास्चन, हियर क्या हो जाएगा, n2 is nothing but 4, 5, 6 to infinite, and n1 is nothing but 3. Then there is bracket series, ठीक है, the n2 is nothing but you are going to write 5, 6 to infinite, and n1 is equals to 4, and then there is Fund series. So n2 is going to be 6, 7 to infinite, and n2 is 6, 7 to infinite, n1 is nothing but 5, ठीक है, and there is another one is Humphrey series. That is n2 is nothing but 7, 8, 9 to infinite, and n1 is nothing but 6. So there are 6 lines we are saying. Mainly the 5 lines are important, these 5 lines. Lyman series, Balmer series, Paschen, Bracket and Fund. But yes, in some books this is also given, so we will count it. This Humphrey series. Okay. Now this Lyman series की all lines belongs to, ठीक है, UV region, है ना. So region it is going to belongs to, I'm writing here. So this is UV region, ठीक है. Then Balmer series की जितनी भी lines हैं, those mostly, है ना, all belongs to visible region. Paschen infrared, Bracket infrared, Fund infrared, all these are infrared. Okay, so this is going to be in infrared also. There are, let's say, 2 type की far infrared, है ना, or let's say the far infrared is means कि wavelength और बहुत बड़ी हो जाएंगी, right? So you can also say that far infrared. But okay, you need to remember this is infrared. So
UV region, Lyman series, visible, Balmer, and others are going to be in infrared. ठीक है, अब ये है क्या, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा सा ड्रॉ करके। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है, नाउ इट इज मूविंग टू लेट्स से लोअर एनर्जी स्टेट। तो मान लो वो 6 में है, अगर 6 से वो 5 में जा रहा है ना, 6 से 5 में गया मान लो, राइट, तो जो भी एनर्जी का फोटोन छोड़ेगा वो फुंड सीरीज में आएगा। दैट एनर्जी द फोटोन इज गोइंग टू बिलोंग्स टू फुंड, क्योंकि वो किस में आया, 5 में आया। लेट्स से 5 से अगर वो 4 में जा रहा है, अब 5 से 4 में जा रहा है, तो जो भी फोटोन छोड़ेगा वो किस में आएगा, ब्रैकेट में। क्योंकि n1 इक्वल्स टू 4 का मतलब क्या है, जो लोअर एनर्जी स्टेट है अगर वो 4 है तो वो किसका मतलब क्या है, ब्रैकेट सीरीज। इसी तरह से अगर वो 4 से लेके 3 में गया तो क्या होगा, है ना, जो भी फोटोन छोड़ेगा दैट इज गोइंग टू बी पार्शियल सीरीज, बिकॉज n1 इज 3। फिर अगर वो n1 3 से 2 में गया तो बामर सीरीज का फोटोन होगा, एंड सिमिलरली अगर वो 2 से 1 में गया तो लाइमन सीरीज। लेट्स से ऐसा होता 6 से सीधे 1 में जाता तो भी जो फोटोन की एनर्जी आती है वो किसमें काउंट होगी, लाइमन सीरीज में काउंट होगी। ठीक है, तो याद क्या रखना है, लोअर एनर्जी स्टेट की लास्ट लोअर एनर्जी स्टेट कहां पहुंचा है ना। ठीक है भाई, ये इतना समझ में आ रहा है, सिंपल सा ही है। रीजन कैसे आएंगे ये मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा आपको, विजिबल रीजन और लेट्स से यूवी रीजन क्या है, इंफ्रारेड। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड एनर्जी डायग्राम, द हेल्प ऑफ एनर्जी डायग्राम। ये सबने लिख लिया, हाँ बोलो भाई। सर मतलब इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट अगर 4 से वो 1 पे आया, लाइमन सीरीज का एक फोटोन छोड़ेगा, मतलब वो फोटोन उसका वेवलेंथ यूवी रेस के वेवलेंथ के बराबर रहेगा। करेक्ट करेक्ट। ओके, यस So सर। everyone has to write a energy diagram like this. थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, n equals to 1 and try to maintain the let's say energy difference like you have read कि n equals to 1 से n equals to 2 के बीच में energy का difference ज़्यादा है, and then the energy difference subsequently is going to decrease. Infinite, ठीक है। Now from anywhere, है ना, now from anywhere if we are able to see let's say from 6 to 1, sorry 7 to 1, or let's say 6 to 1 or 5 से 1, right, or let's say 4 से 1, or let's say 3 to 1 or 2 to 1, let's say anywhere, है ना। So I have written a lot of, all these lines are going to be Lyman series, all these lines belongs to Lyman series, so I will write like here. ठीक है, now
if this is going to move like this, n equals to 2, from anywhere it is, let's say, going to n equals to 2, right? Then this is going to be, you know, it is going to be Balmer series. Let's say similarly we are going to write n equals to 3 में then this is going to be Paschen series. And then you can write, है ना, और जैसे मान लो फिर n equals to 4 में कहीं से भी n equals to 4 में, then this is going to be bracket series. And let's say n equals to 4 हो गया, 3 हो गया, and 5, है ना. Then this is going to be Fund series. P is silent, so Fund बोलते हैं उसको. And that's a 6 2 7 2 1 7 2 6 and this is going to be Humphrey series. The distance, सिद्धार्थ, ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछना चाहिए. The distance is according to energy difference. यहाँ से आगे बीच का डिफरेंस कितना है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ से आगे बीच का डिफरेंस कितना है? 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फिर यहाँ से आगे बीच का डिफरेंस कितना है? 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड दिस इज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना, जब हम एनर्जी डायग्राम बना रहे थे तो कैसे यहाँ पे इस तरफ एनर्जी लिख रहे हैं, राइट? सो हाउ द एनर्जी इज चेंजिंग, राइट? So you can draw from infinity, it's no problem, है ना. You can write through infinity, doesn't matter, कहीं से भी आए, है ना. So it's not like कि infinity से आएगा तो कुछ और हो जाएगा, है ना. Anywhere. So let's draw infinity से. Now why I have not drawn infinity? Because I want to count these lines. ठीक है. So now if you are drawing, okay. So how many lines you are going to observe in, let's say, Lyman series? ठीक है. How many lines you are going to observe in Lyman series? So how many lines you are going to see in Lyman series? That is nothing but n2 minus n1, means delta n. Total number of lines in Lyman series is nothing but n2 minus n1. So you can see, है ना, मान लो, let's say if I am going to say, right, from n equals to 7 to n equals to 1 we are going, right? So how many lines we are going to see? That is 7 minus 1 is 6. So we can see 1 2 3 4 5 6. Understood? How many lines? n2 minus n1. How many lines here?
So I am writing this n2 minus n1 is nothing but delta n. So we are going to say delta n minus 1. कितनी? Delta n minus 1. Now here, here we can write, rather than delta n, we can also write one more thing. See, n1 is fixed over here, and n1 is fixed, that is nothing but 1. So rather than writing n2 minus n1, we can write n2 minus 1. Okay? Because n2 minus 1 is nothing but, n2 minus 1 is nothing but, you are going to have get total lines. So don't write in delta n में फिर आप भूल जाओगे कि n1 क्या है, you are going to make mistake. तो यहाँ पे भी क्या होगा, this is going to be total number of lines n2 minus 2, है ना, ये हो गया. यहाँ पे कितना होगा, n2 minus 3, n2 minus 4, n2 minus 5, n2 minus 6, right? So these are good. आयुष बेटा, बामर सीरीज के लिए n2 कैसे हो सकता है? 2 से 2 में ही कैसे इलेक्ट्रॉन आएगा? बामर सीरीज के लिए n2 क्या होगा, 2 से ज्यादा होगा, है ना? No sir, that sign is minus sign. n2 minus 2 is going to be 0. मतलब, what do you want to say? Raise your hand. Let's hear you. हेलो सर, गुड मॉर्निंग. सर आपने बोला ना कि n2 जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट है. n2 लोअर एनर्जी स्टेट है, रिवाइज नहीं किया ना? आगे सर तो मुझे लगा कि बार्मर सीरीज में n2 होता है लोअर एनर्जी स्टेट, तो दैट माइनस. अरे यार, लोअर एनर्जी स्टेट n1 होता है, कहाँ से 2 आ जाएगा भाई? E2 माइनस E1 लिख रहे थे वहां पे, E2 इज हायर, n2 माइनस n1 लिख रहे थे. रिडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला पता है? लैम्डा का रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में. हाँ सर. बताओ क्या है फॉर्मूला? सर 1 upon lambda is equal to rz square. ब्रैकेट में 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, and where n1 is lower energy state, n2 is higher energy state. हायर एनर्जी स्टेट. तो n2 क्या है? हायर एनर्जी स्टेट. यहाँ लिखा भी है ऊपर इतना बड़ा बड़ा, राइट? यस सर, सॉरी सर. ठीक है. चलो भाई, और किसी को कोई डाउट? ठीक है. So this is applicable for Bohr model only, right? हाँ, this is for hydrogen atom we are saying. Though we are going to say कि यहाँ similar, मतलब these terms can be used for, let's say helium plus ion, और किसी के लिए भी तो similar, let's say you are going to take. If they are going to say helium plus ion, तो आप समझ जाओगे Lyman का मतलब क्या है. n equals to, कहीं से भी n1 equals to 1 में आएगा, right? फार इंफ्रारेड रीजन का मतलब ये है कि वहां पे वेवलेंथ बड़ी हो गई है ना, एनर्जी डिफरेंस कम होता जाएगा. तो यहाँ पे देख रहे हैं, यू कैन सी द एनर्जी डिफरेंस इज गोइंग टू डिक्रीज. एनर्जी डिफरेंस इज गोइंग टू डिक्रीज, देन वेवलेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज.
ठीक है, एनी डाउट या ओवर हियर? सबको ये बात समझ में आ रही है कि ये सीरीज क्या है? अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। सो इसमें आता है एक क्वेश्चन कि इनमें वेवलेंथ क्या होगी मेनली। द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग व्हाट इज गोइंग टू बी द वेवलेंथ। कैन दिस हैव बीन इन रिवर्स? मतलब you are saying absorption spectrum, so we are not talking about absorption spectrum, we are talking about emission spectrum। ये emission spectrum में ऐसा बोला गया है, ठीक है। absorption में तो टूटने का चांस ही नहीं है, हमेशा क्या होगा, जैसे मान लो n equals to 1 से, तो या तो either electron is going to into 2, है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि मान लो 2 से 3, 3 से फिर 4 चला जाए, राइट। n1 से 2 जाएगा, n1 से 3 जाएगा, n1 से मतलब सॉरी n1 का मतलब 1 से 2 जाएगा, 1 से 3 जाएगा, 1 से 4 जाएगा, लाइक दैट इट इज गोइंग टू गो अप, ठीक है। तो एमिशन में ये सारे चांसेस है नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या निकालना है आपको। तो दिस फॉर्मूला विच वी हैव रिटन दैट इज इंपॉर्टेंट, ये जो भी लिखा। तो लैम्डा निकालने के लिए बेस्ट फॉर्मूला यही है ना। दो हमें एनर्जी डिफरेंस पता है, बट उससे हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, उससे हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मिलना चालू होंगी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, 1 अपॉन लैम्डा इज नथिंग बट आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है। दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, एंड इसमें हमें याद क्या क्या रखना है, 1 अपॉन r इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली नथिंग बट 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये हमने निकाला था, राइट। So this information you have to remember. Now for Lyman series, let's say somebody said ki find the wavelength of first line, है ना, wavelength of first line, or they have written let's say alpha line, ठीक है, starting line जो भी बोल सकते हैं, राइट। तो क्या करेंगे यहाँ पे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, राइट। सो वी आर गोइंग टू से फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, लाइमन सीरीज है, सो दिस इज फिक्स कि n1 इज नथिंग बट 1। फर्स्ट लाइन के लिए क्या हो जाएगा, n2 इज नथिंग बट 2 एंड n1 इज नथिंग बट 1, ये फिक्स हो गया, ठीक है। नाउ इफ यू आर गोइंग टू राइट 1 अपॉन लैम्डा इज नथिंग बट r, अच्छा ये हाइड्रोजन है ना, तो z की वैल्यू तो 1 है ही, है ना। तो r आई एम डायरेक्टली राइटिंग r 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 1/4। So the lambda is going to be 1 upon lambda is nothing but 1 minus 1 upon 4 is 3/4 r, or you can say lambda is nothing but 4/3 r. So 4/3 r is nothing but 4 into 3 into 1 upon r, and that is I have said, I have told you कि 1 upon r की वैल्यू मैंने बता रखी है आपको। So that is nothing but क्या हो जाएगा, right? So this is going to be 4/3 into 912. If you are going to solve, then this value is going to be 304, so इससे आंसर आ जाएगा 1216 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो वेवलेंथ है ये सबसे बड़ी होगी या सबसे छोटी होगी, ये वेवलेंथ बताओ भाई, आप सबको बताना है। तो चलो एक पोल ले लेते हैं, लेट्स टेक, है ना। जो लोग कह रहे हैं बड़ी होगी दे आर गोइंग टू से यस, जो आर दोज हु आर सेइंग कि ये सबसे स्मॉलेस्ट होगी दे आर गोइंग टू से नो, राइट, सिंपल।
ठीक है भाई, तो देखो अभी यहाँ पे सबने आंसर दे दिए लगभग 65% आर सेइंग दिस इज लॉन्गेस्ट एंड 35% आर सेइंग इट इज गोइंग टू बी शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो चलो गौरांश आप हर जगह पीछे क्यों हो जा रहे हो भाई? ना भाई, वी हैव टू रिपीट द क्वेश्चन। दो बार बताया था ना, 2 बार क्वेश्चन, आप पैरेलल नहीं चल रहे हो, क्या प्रॉब्लम I है? was noting down the formula wavelength actually. क्या कह रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। I was noting down the formula wavelength, sir. यू आर Noting down the formula of wavelength, so I can't able to सर्चिंग hear. डाउन द फॉर्मूला ऑफ। I will type, sir. I will type. I'm typing it. भाई किसी को इसकी बात सुनाई दे रही है? प्लीज रेज देयर हैंड एंड देन प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट गौरांश इज सेइंग। हाँ बोलो बेटा स्नेहा। I think he was telling that he was noting down the formula of wavelength. अभी तो कान बंद करने के लिए किसने कहा है भाई? राइट, नोट Sir, डाउन द लेकिन फॉर्मूला। मेरा ज़्यादातर ध्यान उसी में रह गया है, so I can't able to hear the question. ओके, नो प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड दैट कि ठीक है तुम लिख रहे हो, बट व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको सुनना भी है ध्यान से, राइट? So I have told you कि first priority is like listening and understanding the concept and then writing. Writing अगर कुछ रह भी जाता है, जैसे कई बार होता है, परफेक्टली तो टाइमिंग कभी बनेगी नहीं ना कि हर बार आपका पूरा जैसे लिख जाए, तो क्या करना है, उसको छोड़ देना वहीं पे। फर्स्ट लिसन, है ना, जब सुनोगे तभी तो समझोगे। तो बीच में मैं जब लोगों के डाउट देता रहता हूँ तो आप उसको कवर कर लो। यस, और किसी को कोई डाउट है? हाँ सर, लेकिन अब क्वेश्चन तो रिपीट कर दो एक बार। हाँ, क्वेश्चन क्या था? मुझे तुम्हारी आवाज ही नहीं समझ में आ रही, सर तुम थोड़ा क्वेश्चन क्या लाउड था? बोलो। क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन खत्म हो गया, आप समझा रहे हैं, ठीक है। मैंने पूछा था कि लैम्डा जो है वो लॉन्गेस्ट होगा या शॉर्टेस्ट होगा। सो लेट्स सी द एनर्जी डायग्राम। बताओ, ये एनर्जी का डिफरेंस बता रहा है, राइट, ऑल दीज। तो यहाँ 2 से 1 लाइमन सीरीज में जो एनर्जी है वो मिनिमम है या मैक्सिमम है? मिनिमम है, तो लैम्डा क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। तो फर्स्ट लाइन इज गोइंग टू गिव यू lambda max. So this is going to be lambda max. Okay, ना तो यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं। First line of any series will give lambda max of that series. तो यहाँ पे राइट एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम है, राइट। फिर से देख लेते हैं, 2 से 1 आ रहा है ना, लाइमन के लिए ही बात कर रहे हैं। लाइमन के लिए बाकी सारी एनर्जी क्या होगी? 2 से 1 वाली एनर्जी से ज्यादा होगी। तो ये एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। ये एनर्जी मिनिमम, देन लैम्डा इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। ठीक है, तो इसमें मुझे भी लगता है कई सारे बच्चे एकदम से पूछा जाएगा तो याद नहीं रख पाएंगे, है ना, कि लैम्डा मैक्स हो गया मिनिमम होगा। सो रिमेंबर द कॉन्सेप्ट कि अगर मुझसे भी एकदम कोई पूछेगा ना तो मैं लैम्डा मैक्स और मिनी एकदम से मुझे रिकॉल नहीं होगा। रिकॉल क्या होगा? ये कि एनर्जी क्या है। ठीक है, अगर एनर्जी सबसे कम है तो लैम्डा क्या आएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो दैट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। याद रहेगा, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया? हेंस लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा? 1216 एंगस्ट्रॉम। अब समझते हैं, ये तो हो गई फर्स्ट लाइन, राइट, अल्फा लाइन, स्टार्टिंग लाइन, अलग अलग नाम है इसके। इसके बाद आता है सेकेंड, wavelength of, let's say somewhere it is written as, है ना, last line, wavelength of last line, somewhere it is called series limit, somewhere it is written as marginal line. So you just have to remember these terms, है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। कई बार अगर मार्जिनल लाइन लिखा है और आपको पता ही नहीं है मार्जिनल लाइन फर्स्ट लाइन है या सेकेंड लाइन है,
या फिर लास्ट लाइन है, तो क्या होगा फिर, तो आपसे निकलेगा नहीं, राइट। तो वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन क्या हो जाएगा, लास्ट लाइन इज n2 इज नथिंग बट इनफाइनाइट एंड n1 इज नथिंग बट, फॉर लाइमन सीरीज है तो n1 की वैल्यू 1 हो गई। तो वी आर गोइंग टू राइट 1 अपॉन लैम्डा इज नथिंग बट r, z स्क्वायर 1 है, n1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर, सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 0, है ना, 1 अपॉन इनफाइनाइट। So hence lambda 1 upon lambda is going to be r, or you can say lambda is equals to 1 upon r। तो कहाँ से हो गया 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। So hence what we can write, तो ये क्या हो जाएगा lambda minimum, राइट, सबसे छोटा lambda यही होगा क्योंकि एनर्जी मैक्स थी, lambda minimum, राइट। So we can write note last line will give lambda min of that series, ठीक है। एंड यू कैन रिमेंबर दिस ऑल्सो, है ना, दिस इज नथिंग बट, अगर हम ध्यान से देखें द लास्ट लाइन की जो वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे n2 स्क्वायर इनफाइनाइट लिख दूं और n1 तो, राइट, n1 को n1 ही रहने दूं, राइट, बिकॉज n1 विल चेंज, तो किसी के लिए 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर्मूला यहाँ पे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन लैम्डा इज नथिंग बट, है ना, r बाई n1 स्क्वायर, और यू कैन से ना लैम्डा इज नथिंग बट n1 स्क्वायर बाई r। तो अगर मैं लाइमन की बात कर रहा हूँ तो 1 बाई r हो जाएगा, अगर मैं बात कर रहा हूँ बामर की देन 4 बाई r हो जाएगा, राइट। सो आई विल राइट नोड, इसमें लिखूंगा नोड, है ना, अच्छा नोड में लिख लेते हैं, अच्छा नोड, फॉर्मूला फॉर let's say last line or marginal line, last line in any series, so 1 upon lambda is nothing but r n1 square, hence lambda is nothing but n1 square by r, ठीक है। So this is going to give you lambda minimum, यहाँ पे लिख सकते हैं lambda minimum, that is 912 angstrom for Lyman series, और ये भी होगा lambda minimum, मार्जिनल लाइन है तो ये lambda minimum का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें बदल दिया n1 स्क्वायर बाई r। बट अगर किसी को याद ना रहे तो ये बेसिक फॉर्मूला तो सबको याद रखना है, ये वाला, है ना, आप n2 की वैल्यू 1 बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर करके फिर यू कैन गेट द आंसर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हेंस वी कैन राइट, हेंस लाइमन सीरीज और हाइड्रोजन, है ना, you can write it is going to be from starting from 10.2 electron volt in terms of energy, and it will goes to 13.6 electron volt, है ना। फिर से देख लेते हैं, 10.2 का मतलब क्या है, 2 से 1 में जो एनर्जी का डिफरेंस था वो 10.2 था, हाईएस्ट कितना होगा इनफाइनाइट से 1, दैट इज 13.6, है ना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी टर्म्स में है। ये इसका मतलब क्या है, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू n2 equals to 2 2 n1 equals to 1, right, or we can write directly 2 to 1, this corresponding to infinite to 1, this is going to give you lambda max, है ना, ये समरी है एक तरह से। lambda max की वैल्यू कितनी आई थी 1216 एंगस्ट्रॉम, and what is lambda minimum, this is going to give you lambda min
दैट वैल्यू वाज 912 एंगस्ट्रॉम। अच्छा ये बताओ, ये सारी जो वैल्यू है 912 एंगस्ट्रॉम से 1216 एंगस्ट्रॉम, ये सब किसमें लाई करेंगी? वेयर दीज आर गोइंग टू लाई? विजिबल रीजन में या यूवी विजिबल, अल्ट्रावायलेट में? अल्ट्रावायलेट में विजिबल कहाँ से स्टार्ट होता है? 3800 एंगस्ट्रॉम, तो उससे पीछे जो भी होगा तो ये क्या हो जाएगा? यूवी रीजन। तो यहाँ से आ गया। ठीक है, सबको ये बातें समझ में आ रही है भाई? जिसने नहीं लिखा जल्दी से लिख लो पहले, है ना, सब कुछ, फिर हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ 2-3 बातें मैंने समझाई हैं, राइट? दैट इज फर्स्ट इज कि फर्स्ट लाइन क्या होता है ना? तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है? जस्ट एक पहले, है ना? तो अगर मान लो n1 1 है लाइमन सीरीज के लिए, तो n2 क्या होगा? 2 2 1, राइट? फर्स्ट लाइन, और यू कैन रिमेंबर लेट्स से दिस इज अल्फा लाइन, स्टार्टिंग लाइन, कुछ भी ऐसा हो सकता है। लास्ट लाइन इनफाइनाइट से 1, वो सीरीज लिमिट, मार्जिनल लाइन, कुछ भी हो सकता है। ये किसके लिए? लाइमन के लिए पहले। तो एनर्जी पार्ट क्या होगा भाई? 2 से 1 आ रहा है तो फिर एनर्जी डिफरेंस क्या निकलेगा? हम वी हैव चेक्ड, है ना? पहले जो एनर्जी डायग्राम देखा था उसमें हमने देखा था दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, n इक्वल्स टू 2 की एनर्जी कितनी थी एनर्जी स्टेट में? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13.6 से 3.4 हटाएंगे तो 10.2 आएगा, एंड दैट एनर्जी इज गोइंग टू कीप ऑन इंक्रीजिंग, है ना? 3 से 1 में आएगा और बढ़ेगी, 4 से 1 में आएगा और बढ़ेगी, तो इनफाइनाइट से 1 में आएगा तो कितनी आएगी? 13.6। तो हमने लिख लिया। So for Balmer series, first line will be 3 to 2, है ना? 3 to 2। तो अब ये आपको सब लिखना है, जो बताना है आपको। अच्छा, इसमें एक और बात लिख लेते हैं। अगर कहीं पे किसी ने पूछा गया बीटा लाइन या सेकेंड लाइन, इसका मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड लाइन, है ना? तो यहाँ एक क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन इन लाइमन सीरीज। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन इन लाइमन सीरीज and solve. Find the wavelength of second line in Lyman series. This is the question. Shall be, I will not tell you कि किसका क्या मतलब होगा, that you have to check, right? मैं जब बताऊंगा आंसर, then you can see. हाँ बोलो रोशील, क्या दिक्कत है? सर तो ये जो आपने सब वेवलेंथ्स का सर फॉर्मूला बताया है सर, तो अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं सर, तो वो पैटर्न क्या दिखाई देता स्पेक्ट्रम का? मतलब
मतलब कि सर ये तो आपने एटॉमिक लेवल पर क्या होता है वो बताया, लेकिन अगर इस सच में बैंड बनता, स्पेक्ट्रम बनता तो कैसे होता? तो देखो पहली बात तो ये है कि ये क्या कंफर्म कर रहा है, ये जो हमने स्पेक्ट्रल लाइंस मिली हमें अलग अलग, सो दिस इज कंफर्मिंग कि देखो भाई एनर्जी लेवल है ना। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि ये जो अलग अलग लाइंस मिल रही हैं ना एब्जॉर्प्शन और इमिशन से, ये क्या बता रही है, रिजल्ट क्या मिला हमें कि हमें एक फोटोग्राफिक प्लेट पे अलग अलग लाइंस मिली है ना, अलग अलग डार्क और कलर्ड ऐसे कुछ लाइंस मिली, राइट। तो जो लाइंस मिली उससे हमें ये आइडिया लगा कि यहाँ पे एनर्जी लेवल है, दिस इज द प्रूविंग दैट। अब बात आती है कि ये तो था एटम के लिए, अगर कोई मॉलिक्यूल होगा तो उसमें हर एटम में ऐसा होगा, राइट। हाँ सर। हर एटम की अलग अलग एनर्जी लेवल्स होंगे और उसके हिसाब से मिलेगा। तो वही ये कह रहे हैं कि इसीलिए इमिशन, और अगर हम बात करें एटॉमिक फॉर्म की, अगर हम एटॉमिक में इमिशन और एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक लेवल पे एब्जॉर्प्शन जो देगा वो बैंड स्पेक्ट्रम देगा, और क्या कहते हैं इमिशन जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा है। बट लेट्स से अगर हम मॉलिक्यूल की बात करने लग जाएं, राइट, तो फिर हर तरह की वेवलेंथ आने लग जाएगी, तो बैंड बनने लग जाएगा, तो फिर इंडिविजुअल लाइंस नहीं रहेंगी ना, क्योंकि बहुत सारे एटम है एक मॉलिक्यूल में और उनकी अलग अलग एनर्जी है, उसके कारण फिर लाइंस मिलेंगी हमें, तो वहां पे बैंड मिलने लग जाएगा। हाँ सर। ठीक है सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि हम्म हम जो फॉर्मूला लिख रहे हैं सर वो हाइड्रोजन एटम के लिए ही है ना? जो हम लिख रहे हैं वो सब हाइड्रोजन एटम के लिए। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो अभी बहुत सारे लोगों के आंसर आ गए एंड द राइट आंसर इज 1026 एंगस्ट्रॉम। कैसे निकाला है ना, दैट इज द क्वेश्चन। तो लेट्स सी क्या किया हमने, सेकंड लाइन, लेट्स सी फॉर सेकंड लाइन of Lyman series, somewhere it is can be also written as beta line. Okay. So n2 is nothing but 3, 2, n1 is nothing but 1. So you will write 1 upon lambda is nothing but r, n1 square 1 upon 1, 1 is 1 upon 9. So you are going to write lambda, 1 upon lambda is nothing but 8 by 9 r, or you can say lambda is nothing but 9 by 8 into 1 by r. So you are going to write 9 by 8 into 912. If you are going to solve this, है ना, इसको कट करके देखेंगे, right? So then we are going to approximately this value is going to be 1026 angstrom. So this is going to cut by 8, है ना, 1, let's say this is going to be 11, so 1 and 4. Right. तो ये हो गया। अब चलो बामर सीरीज की बात कर लेते हैं। लाइमन हो गई, let's say for बामर सीरीज, what do you have to do? Find lambda max and lambda min. ठीक है, lambda max is corresponding to delta E min and lambda minimum is corresponding to delta E max. ठीक है, डेल्टा ई मिनिमम कितना होगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। बस मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ, और ये कितना होगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज n2 equals to 3 to 2 और यहाँ n2 equals to infinite to 2। ठीक है, तो फिलहाल बामर सीरीज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, है ना, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आप लोग ये लैम्डा मिनिमम और मैक्सिमम निकाल के बताओ। चलो भाई लग जाओ काम पे। मिनिमम तो बहुत आसान है, मिनिमम का फॉर्मूला क्या था, n1 स्क्वायर डिवाइड बाई r, 4 1 by r is
912. So this is nothing but, मैं यहाँ लिख देता हूँ. So it is nothing but 4 into 912. है ना? ठीक है, इसको नीचे लिखेंगे. लैम्डा मैक्स होगा. केवल 2 आंसर आए अभी तक मेरे पास. सो आई वांट मोर आंसर्स. ओके. सो आई एम नॉट आस्किंग मिन, आई एम आस्किंग मैक्स, क्योंकि मिन तो मैंने बता ही दिया है, राइट? चलो भाई देखते हैं क्या करना था. So we are going to write lambda max, right? That is nothing but 1 upon lambda max is nothing but 1 upon, sorry, r 1 upon n1 square. So n1 is nothing but 2 का square 4 minus 1 upon n2 square, that is 9. So 1 upon lambda max is nothing but r. We have to take LCM, so this is 36, and 9 minus 4 is nothing but 5. So 1 upon, hence 1 upon lambda max is nothing but 5 by 36 r, or you can say lambda max is nothing but 36 by 5 into 1 upon r, which is 36 by 5, 912 angstrom. So if you are going to solve this, right, it is going to be approximately 6566 angstrom, approximately. ठीक है. So this is going to be let's say like this. अच्छा, ये approximate value है 912, so it is somewhere 911 point something आता है. तो ये जो value है, I think that is given as 6564, right? So I will write, ठीक है. बट इतना चलेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे it is going to work, right? So we don't be like कि सर इतना आगे पीछे एक आध डिजिट में कोई प्रॉब्लम होगा, तो नहीं. ठीक है. आप समझते हैं लैम्डा मिन का फॉर्मूला क्या है? n1 square by r we have calculated. तो जाएगा 2 का स्क्वायर by r, and that is 4 divided by r. So that is going to be 3648 angstrom. तो अब ये 3648 angstrom है just short of visible region, है ना? बट
अदर देन दैट, है ना, अगर जैसे मान लो इसकी सेकंड लाइन निकालेंगे, लेट्स से कैलकुलेट सेकंड लाइन, सब लोग सेकंड लाइन निकालो। सेकंड लाइन इन बार्मर सीरीज, सेकेंड लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, n2 इक्वल्स टू 4 to 2, so 1 upon lambda is nothing but r 1 by 4 minus 1 by 16, ठीक है, तो 16 या एलसीएम हो जाएगा 3, right, so this is going to be like 3 by 16, एक मिनट, हाँ, so so 1 upon lambda is nothing but 16 by 3 into 1 upon, sorry, lambda equals to, lambda is nothing but 16 by 3 into 1 upon r, हो जाएगा 16 into r की 1 upon r की वैल्यू कितनी थी हमारी यहाँ पे 912 अप्रोक्सीमेटली, सो 304, तो ये कितना मिल गया यहाँ पे 48 and 64 अप्रोक्सीमेटली, है ना, 4864, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये तो विजिबल रीजन में, और ऑब्वियसली थर्ड फोर्थ लाइन और जितने भी है सब विजिबल में आएंगे, तो इसीलिए वार्मर सीरीज को क्या बोलते हैं कि वार्मर सीरीज इज गोइंग टू लाई इन विजिबल रीजन, क्योंकि ये जस्ट शॉर्ट है फर्स्ट लाइन, ठीक है, जस्ट शॉर्ट ऑफ विजिबल रीजन है, बट ओके अगर इसको मान लें कि ठीक है विजिबल की तरह ही है, तो सारी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक है, मैक्सिमम कितना है 6500 समथिंग, विच इज ऑल्सो इन विजिबल रीजन, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हेंस वार्मर सीरीज इज गोइंग टू बी इन विजिबल रीजन, है, समरी लिख लेते हैं यहाँ पे, so summary is nothing but the lambda minimum is going to be 3648 angstrom and lambda max is nothing but 6564 angstrom approximately, ठीक है, this value, and energy this lambda minimum is going to corresponding to Emax, so Emax is going to be 3.4 electron volt and this is going to corresponding to Emin, so that is nothing but 1.89 electron, you know, this is going to lie in visible region, ठीक है, अब चलते हैं थर्ड, दैट इज पास्शियन सीरीज, तो भाई बताओ पास्शियन सीरीज में लैम्डा मैक्स लैम्डा मिन, लैम्डा मैक्स के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एनर्जी मिन, मिनिमम एनर्जी कितनी होगी 4 और 3 के बीच का डिफरेंस 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लैम्डा मैक्स कितना हो जाएगा, सॉरी ई मैक्स कितना हो जाएगा, दैट इज 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैं कैसे लिख ले रहा हूँ इतनी जल्दी, क्योंकि मुझे वो वैल्यू याद है 10.2 1.89 0.66 राइट लाइक दिस, मुझे वैल्यूज याद है, मैं एक बार एनर्जी डायग्राम फिर से बना दे रहा हूँ जस्ट फॉर योर रिकॉल, लाइक यू कैन रिकॉल, छोटा सा बना दे रहा हूँ यहाँ पे, -13.6 -3.4 -1.51 -0.85 and then let's say -0.31 -0.54, sorry not 31. What is the difference? 10.2 1.89 0.66 and this is 0.31, ठीक है, what is the difference here, let's say इंफिनिटी से लेके यहाँ तक का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो ये इतना ही हो जाएगा 13.6 3.4 1.51, है ना, ऐसे,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ भाई, लैम्डा मैक्स मिनिमम। ठीक है भाई, सबके आगे आंसर एंगस्ट्रॉम में रखो अचिंत्य आंसर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लैम्डा लेट्स से मिनिमम नथिंग बट एनर्जी मैक्सिमम, तो ये तो सिंपल है ना, n1 स्क्वायर बाई आर। सो n1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 9 बाई आर। सो दिस इज 9 इंटू 912। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी, अगर इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 81 एंड ये 8208। सो यू कैन सी दिस इज इन इंफ्रारेड राइट, ये विजिबल को क्रॉस कर गया है 8208। नाउ लैम्डा मैक्स अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा, सो 1 upon lambda max r 1 upon n1 square that is 9 minus 1 upon n2 square that is 4 है ना। लैम्डा मिन कहाँ से कहाँ के लिए होगा, इनफाइनाइट टू 3, ये 4 to 3। तो अब इसमें ना, इसमें बस इतना ही याद रखना है, कई बार बच्चे भूल जाते हैं, अभी तो खैर आपको याद है क्योंकि अभी मैं समझा रहा हूँ। मैक्स और मिन मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, तो मैक्स का मतलब क्या है, जो एनर्जी छोटी है जस्ट अब है ना, जस्ट अबव द लेट्स से n1 वैल्यू, तो 4 to 3 याद रखना है, उसमें गलती नहीं कर देना। लैम्डा मैक्स का मतलब फिर आपने मैक्सिमम निकाल दिया इनफाइनाइट से 3 है ना, वो नहीं करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ले लेंगे 144, और ये कितना हो जाएगा 16 minus 9 is nothing but 7 r। So lambda max is going to be 144 by 7 into 912, sorry 1 upon r, so 144 by 7 into 912। so if you are going to solve it then this is 121, so 3 130.3 के आसपास ले लो और इसका मल्टीपल कर दो है ना, तो कितनी वैल्यू आ रही है, जनरली पीपल हैज गिवन 18748 के आसपास आंसर है ना। So 18,748 something is going to come. So I'm taking this answer, right? So this is also infrared, right? तो पार्शियन इंफ्रारेड है तो बाकी सब तो इंफ्रारेड होने ही है। ठीक है, तो हम बाकी पार्शियन ब्रैकेट फंड की एनर्जी वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं। द ओनली थिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज ओवर हियर कि लाइमन की सारी वेवलेंथ आ रही है यूवी रेडिएशन में, बामर की आ रही है विजिबल में, एंड पार्शियन ब्रैकेट फंड हम्फ्री जितने भी हैं सबकी किसमें आ रही है, इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो अब एक क्वेश्चन है, इफ है ना एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n equals to
n2 equals to 5 2 n1 equals to 1. Find number of photons in Lyman in visible region, sorry, in UV region. B, number of photons in visible region. And C, number of photons in infrared region. बताओ भाई आंसर. And D, total number of photons, total number of different type of photon, total number of different type of photon emitted. चलो ये बताओ भाई n2 equals to 5 to 1 में आ रहा है. बताओ भाई आंसर. व्हाट इज द आंसर? So meanwhile what you have to do is you have to start solving questions. तो अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. कहाँ तक? लेट्स सी. सो वी हैव डन ऑलरेडी बोर मॉडल. ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आज मैंने आपको पढ़ाया है. सो यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन. हमने वहाँ पे है ना 49 तक हमें करना है. राइट, चलिए टिल 49 तक हमें सॉल्व कर लेना है. राइट, अभी मैंने केवल ऑब्जेक्टिव ही दिए हैं. ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं दिए हैं. सो एक मिनट कहाँ गया. हाँ, फाउंडेशन बिल्डर में वी हैव ऑलरेडी सॉल्व टिल क्वेश्चन नंबर 15. और इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी. आई हैव सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले कुछ है ना, ये क्वेश्चंस बताए हुए हैं. राइट, वी हैव सॉल्व दिस ड्यूरिंग द क्लास. तो इसके बाद वाले जितने भी हैं, राइट, यू हैव टू सॉल्व इन बिटवीन. जितने भी हैं टिल 49 यू शुड सॉल्व. दिस इज होमवर्क. क्लियर है भाई? कोई प्रॉब्लम? चलो अब देखते हैं आंसर क्या हुआ. तो सिंपल मीनिंग ये है कि यहाँ पे जब यूवी रीजन देखना है तो उसका मतलब है लाइमन. दिस इज द हिंट. विजिबल इसका मतलब है बामर. एंड इंफ्रारेड मतलब फिर बाकी रिमेनिंग. दिस इज द व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. लाइमन का मतलब क्या है? n2 minus 1, क्योंकि 1 में आ रहा है ना. n2 minus 1. so what is going to be the answer over here? 4. 5 minus 1 4. इसका फॉर्मूला क्या था? n2 minus 2. so what is going to be answer over here? 5 minus let's say 2, so 3.
and the remaining are going to be, अब now you have to check remaining कितने होंगे. So you can write, either you can think कि भाई 5 से और क्या क्या पॉसिबल है, 5 से 3 पॉसिबल है, 5 से 4 पॉसिबल है. So you can write 2 plus 1. मतलब 5 से 3 का मतलब पैशन सीरीज पॉसिबल है, पैशन सीरीज में तो 2 आएंगे, राइट, एंड ब्रैकेट में 1 आएगा. तो लाइक दैट यू कैन रिमेंबर, और यू कैन रिमेंबर लाइक दिस, है ना. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट डिफरेंट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड. तो डिफरेंट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड में हम क्या करते थे, 1 + 2 + 3 2 डेल्टा एन करते थे. डेल्टा एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 5 - 1. सो 1 + 2 + 3 + 4 दैट इज 10. अच्छा, अच्छी बात क्या है, अगर आप ये लिखोगे तो यहाँ पे भी आपको ये बता रहा है, दिस इज लाइमन, है ना, दिस इज बामर, दिस इज गोइंग टू बी पाशन, है ना, दिस गोइंग टू बिलोंग्स टू ब्रैकेट. अगर वो फॉर्मूला आप लिखोगे तो 1 2 3 4, तो ये आंसर आ जाएगा. तो रिमेनिंग कितने हो जाएंगे, है ना, 3 and 4 आर गोइंग टू बी इन, दिस इज इन विजिबल, दिस इज इन यूवी रीजन. तो ये कितना रिमेनिंग कितने हो गए, क्लियर है. Sir, when they ask number of photons, I used the formula of hc by lambda and I found n. So is it that way? hc by lambda and फिर then you have found n. N. I thought. कैसे टोटल एनर्जी तुम you're calculating number of photons. Yeah, I was confused with different types of photons and number of photons. ये तो अभी बताया ना, what we have done. Okay, now I understood. Yeah. नहीं ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन यूवी रीजन में कितने गिरने वाले हैं, है ना, जितने भी टोटल फोटॉन मिले 10 डिफरेंट टाइप के फोटॉन मिले, उनमें से यूवी रीजन वाले फोटॉन कितने थे, विजुअल वाले कितने थे, और इंफ्रारेड रीजन वाले कितने थे. ये क्वेश्चन था. एंड आल्सो दिस इज अ ट्रिक दैट यू कैन लर्न, है ना, बट बी केयरफुल. एक क्वेश्चन और लिखता हूं एग्जांपल, देन यू आर गोइंग टू गेट अ क्लैरिटी. सेम है, इफ ए इलेक्ट्रॉन making transition from n2 equals to, let's say, 5 to n1 equals to 2. ठीक है, फाइन. A number of electrons, number of photons, sorry, in UV region. B number of photons in visible region. C number of photons in infrared region, है ना. ये एक मान लो क्वेश्चन है. ठीक है, इसको सॉल्व करो. And total number of photons, let's say, total number of. यहाँ पे ना क्वेश्चन में थोड़ा 6 लिख लो, n2 equals to 6 to 2. Just solve 6 to 2. That's it, जिन्होंने 5 to 2 सॉल्व कर लिया वो एक बार 6 to 2 करके देखिए. Okay, I got one answer.
चलो भाई अब आंसर देख लेते हैं, है ना, काफी लोगों के आंसर आ गए। वेट, तो भाई इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखनी है, दैट इज n2 इक्वल्स टू 2 टू n1 इक्वल्स टू 2 में आ रहा है। So it is not coming to n1 equals to 1 at all. It is not given in the question. इसका मतलब है लाइमन सीरीज ऑब्जर्व होगा नहीं, क्योंकि वो 1 में तो आ ही नहीं रहा है ना। लाइमन सीरीज क्या है, कहीं से भी 1 में आए, यहाँ तो आ ही नहीं रहा है। So that's why number of photons in Lyman for Lyman series is going to be 0, है ना, no Lyman series, no photon in Lyman series. अब बात आई 6 to 2, right? So what you are going to write, visible region में कितने आ जाएंगे, 4, है ना। 6 से 2 visible में तो फिर 4 ही हो जाएंगे, है ना। 6 minus 2 that is going to be 4. बाकी सब इंफ्रारेड रीजन में होंगे, कितने होंगे, so total number of photon we are going to calculate. So over here you are going to write 1 delta n 1 plus 2 plus 3 plus 4. Now the thing is you have to start from Balmer series over here, Balmer, that is nothing but 10. तो ये फिर क्या हो जाएगा, Partian, this one is bracket and this one is fund. ठीक है, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 6. इंफ्रारेड में कितने आए, 6. आंसर्स आर दिस 0, 4, 6 and 10. समझ में आया, राइट। सिमिलरली इफ समबडी इज सेइंग, मान लो 6 to 3 में आता है, then Lyman as well as Balmer both will not be observed, right? So you have to be careful कि ऐसा नहीं केवल फॉर्मूले पे ही ध्यान रखना है, ये भी देखना है कि वो कहाँ से आ रहा है ना, कहाँ तक जा रहा है। So that is also you have to keep in your mind. क्लियर है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बेसिक बातें, मोटी मोटी बातें हमारी खत्म हो गई। अब ऑब्वियसली इसमें क्वेश्चंस थोड़े लेंदी होते हैं, ठीक है, इमेजिनेशन इज रिक्वायर्ड, तो उनमें कुछ क्वेश्चंस हम कराएंगे और कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे यहाँ जो होमवर्क दिया है, राइट, ठीक है। इन मीन वाइल अगर कोई ज्यादा थोड़ा ओवर एंथुसियास्टिक है तो वो क्या कर सकता है, ही कैन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, लेट्स से है ना, then you can start solving question and get equipped to JEE advance और mains, ये वाली जो आगे वाली एक्सरसाइज है। but the thing is you have to see कि अभी चलो छोड़ो, अभी रहने देते हैं, you have to find in between, मतलब क्वेश्चंस आपको ढूंढने पड़ेंगे, है ना, जैसे ये 29, 30, मिनिमम वेवलेंथ पूछ रहे हैं, है ना, 30, 31, ऐसे 32, ये वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे, इनमें मिक्स है। तो ठीक है, अभी चलते हैं एक सीक्वेंस में, तो आप पहले 49 तक कर लो, राइट, इस एक्सरसाइज में। अच्छा भाई, जिनको आप डाउट है 49 तक क्वेश्चन करने हैं ना, दिस इज योर होमवर्क टिल क्वेश्चन नंबर 49 फाउंडेशन बिल्डर में। अब जिसको कोई डाउट है वो पूछ लो, बाकी अदर कैन लीव। सर अभी जो आपने क्वेश्चन दिया था उसमें 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन कौन से बता सकते हो? कौन से 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटो, सर आपने 1 + 2 + 3 + 4 लिया ना, तो हाँ, 4 डिफरेंट कौन से एक बार बता सकते हो? तो बताया ना कि ये 4 कहाँ से स्टार्ट होगा, बामर से। यस सर। बामर में कौन कौन से आएंगे, 6 to 2, 5 to 2, 4 to 2, 3 to 2, हो गए 4। यस सर। ठीक है, अब 2 में और कोई तो आ नहीं सकता, 3 में सोचेंगे 6 to 3, 5 to 3, 4 to 3, 3 आ गए पार्शन। यस सर। फिर 3 में अब कोई और नहीं हो सकता, फिर 6 to 4, 5 to 4 ब्रैकेट, 6 to 5 फुंड। ओके सर, समझ गया सर, थैंक यू सर।
हेलो, हाँ Sir, ऋषि, when you were explaining the dual nature of light, you gave us the introduction of photoelectric effect, right? You did not explain the whole topic, like work function and threshold frequency. yes, I have not completed photoelectric effect, don't worry. ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक के क्वेश्चन हैं, आगे हैं, कराएंगे फोटोइलेक्ट्रिक, ये एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट I thought आपको the topic फोटोइलेक्ट्रिक। was before, so you may have finished. नहीं, मैंने Okay, बोला sir. था क्लास में कि मैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा, मैंने कहा अभी मैं Okay, आइडिया दे sir. रहा हूँ शॉर्ट में, बट आई विल टीच यू। Okay, sir. And what is ionization enthalpy? एंथैल्पी और एनर्जी फॉर राइट नाउ यू कैन से द सेम थिंग, ठीक है। Okay, sir. एंथैल्पी इज अनदर वर्ड, बट आप उसको सेम ही मानो, ठीक है। Okay, sir. Got it. हाँ भाई यशवर्धन। Sir, in Lyman series, you said that minimum energy is for N2 minus N1, but that should be maximum, right? Because it is 10.2 and N3 minus N2 is 1.89. N3 minus N2 is nothing but बामर हो गया। N3 मतलब 3 to 2, और आप वो N3 और N2 मत पकड़ के चलो, N2 यहाँ पे हायर है और N1 यहाँ पे लोअर है। So अगर the state is 3 also, then you are going to say that is N2 is 3. Okay, sir, got it. Divanshu 1 to 15 already we have solved, ठीक है, तो you just have to solve after that. Harini, okay. Rajdeep, हाँ yes. सर फर्स्ट लाइन मतलब जिस सीरीज में उसके आगे की लाइन, और सेकंड बीटा लाइन मतलब उसके आगे की लाइन ना। हाँ ये मुझे तुम बता रहे हो, पूछ रहे हो? आई एम आस्किंग सर। इसमें क्या पूछना है, ये तो ऑलरेडी बताया मैंने क्लास में। वो कंफ्यूज है। ठीक है, ऋषिका। Yes, sir. Sir, when a ideal black body is emitted, it is heated. When a black body is heated, it radiates some wavelength. So, can we say it is directly proportional to the temperature? Like when the temperature rises, it gives Actually, the wavelength of, yes, it is proportional to temperature, yes. But उसमें पावर आता है, T की पावर 4 आता है, अलग अलग थ्योरीज हैं उसमें भी, according to results they have given. if the temperature rises and we plot a intensity into wavelength graph, the lambda max would be maximum for the maximum temperature. The thing is कि ये जो ग्राफ है ना, ये कई जगह पे बुक्स में उन्होंने केमिस्ट्री में दे रखे हैं, एवरीथिंग दैट इज बिलोंग्स टू फिजिक्स, तो अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है आपको। Okay. ये हाँ, तो वो कई जगह पे मिक्स कर दिया उन्होंने, so don't worry about it. And sir, like intensity of the black body is directly proportional to the temperature. Lambda, intensity of wavelength, right? Radiated wavelength, हाँ। Yes. हाँ, तो उसका एक ग्राफ बनता है, इंटेंसिटी और टेम्परेचर का ग्राफ बनता है, कि हाउ द इंटेंसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। मेनली इंटेंसिटी, लैम्डा और टेम्परेचर, ये तीनों चीजें आपस में रिलेट करके देखते हैं। Sir, it belongs to Planck's theory, right? No. प्लैंक ने क्या बोला था? प्लैंक सेड कि ये जो है ना डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उन्होंने ये कहा कि ये यहाँ पे दिख रहा है ना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी यही बात आ रही है, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी आ रही है। But sir, like when I was reading the textbook, I saw that when the temperature will increase. Which textbook you were reading? NCERT. अच्छा. So when the temperature is increasing, the frequency is also increasing. But temperature is directly proportional to the wavelength. But wavelength and frequency. Temperature means energy, right? Yes, the energy you're putting on the Temperature black means body. energy. So energy is going to proportional to. Energy is frequency, na? Yes. But sir, I asked if wavelength is also directly proportional to the temperature. No, sorry. So that is going to be wavelength, frequency, temperature.
एनर्जी से देख लो, है ना. Okay, so directly proportional to frequency and inversely to the wavelength. हाँ, to wavelength. Okay, sir, got it. Yes, Harini. But I cannot hear you. Harini. Harini. Okay, चलो फिर ठीक है. Then that's it. Question number 16 to 49. First exercise हुआ है, foundation builder.